Okay, ji, starting with the first question. Consider three-letter word that can't repeat how many of these three-letter words are identical, right? Okay, ji. First of all, three-letter words that can't repeat means you are going to have a word which is comprising of three letters, right? And the constraint here is that the first letter, the second letter, and the third letter, they should all be different. That is, the letter that is at the first position can't be repeated at the second or the third position. And same is the case for the letters at the second position and the third position. यानी तीनों letters में कोई repetition नहीं आनी चाहिए, right? So first of all, we will see that with this constraint, how many possible words can be built up, right? Start करते हैं पहले position से. In the first position, out of 26 letters in the ABC, the alphabetical order, then for the first position, we have total 26 possibilities. That is from A to Z. अब उसमें से A था, B था, C था, whatever out of these letters, for the very next position, that is position number 2 or the letter number 2, we can't have the one that is being used in the first position. Repetition allowed nahi hai. So how many possibilities or options are left for the second position out of 26 letters? Any 25. guess? Very good, 25. Because one of these letters has been used here. So we are left with 25 possibilities that can fill up the second position. Now what about the third position? Once you have filled the first two with some letters. Yes, we are left with 24 possibilities, right? So total possibilities are the product of these three, that is 26 cross 25 cross 24, and the amount turns out to be 15,600. So you can build up a total of 15,600 three-letter words with the constraint that any of the letter is not repeating itself in a single word. ठीक, तो ये टोटल हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं जिसके थ्रू हम ये लेटर्स कंपोज कर सकते हैं. Now what is the question at hand? How many of these three letter words, यानी ये जो टोटल हमारे पास आया है 15,600, in three letter words में से how many words that are identical, जो कि same हो. ठीक, now the how many of these three letter words sorry, I have missed one thing here. 8 are identical, right? Okay, ji. So the number of containers, right? Containers here are 15600, right? And the k plus 1 that is at hand is basically the 8, right? Now, how many total pigeons, that basically mapping it with the generalized pigeonhole principle,
There we had n pigeonholes that were occupied by kn plus 1 or more pigeons, and at least one of the pigeonhole is occupied by k plus 1 or more pigeons. ठीक? So k plus 1 is basically the 8. So the k is definitely going to be 8 minus 1, that is 7, and kn plus 1, that is total number of pigeons, that is going to be k is basically 7 times 15600 plus 1, and this turns out to be 10920, right? Okay, let's move on to the second question here. A box contains 10 blue balls, 20 red balls, 8 green balls, 15 yellow, and 25 white balls. How many balls must we choose to ensure that we have 12 balls of the same color, right? So in a box, we have basically blue, red, green, yellow, and white. That is balls that belong to 5 different colors. And every color has different number of balls, right? Now the question at hand is that out of this box that is containing balls of 5 different colors and each color is having a different number, how many balls we must choose out of this whole pool so that the picked balls, out of these picked balls, 12 balls are of the same color, right? Now, uh, one thing is very much clear here, that whatever number of balls you are going to pick, you can't have all balls that are of blue color. Why? Blue colors total hai kitna? 10. You can't have 12 balls that are of blue color. Same is the case for green. You can't have 12 balls that are of green color. So the possibilities lies at the end of red balls, white balls, or yellow balls, right? Now, first of all, let's map it according to the generalized pigeonhole principle. Here, the requirement that we have is that how many balls we have to pick, right? यानी number of balls जो हमने pick करनी है, जो कि एक specific scenario में fit in होंगी, वो basically हमारे क्या हो गए? Pigeons हो गए, ठीक? So let me write it here. Number of balls that actually we have to find out. These are basically the number of pigeons. और generalized pigeonhole principle में हम उसको किससे represent करते हैं? Kn plus 1 से. So basically the quantity that we have to find is Kn plus 1. Now what is basically K plus 1? यानी एक कंटेनर में जो चीज फिट इन होनी है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो क्या है कि जो 12 बॉल्स हमारे पास आए वो सेम कलर की, ठीक? सो दैट इज बेसिकली 12. हाउ मेनी नंबर ऑफ कंटेनर्स आर हियर? नंबर ऑफ कंटेनर्स हमारे क्या है? हमारे टोटल कलर्स हैं एक तरह से, ठीक? सो बेसिकली n here is 5, that is container, which are in fact the 5
colors, right? Now from here we can say that k is going to be 12 minus 1, that is 11, and kn plus 1 is going to be 11 times n is 5 plus 1. This turns out to be 55 plus 1, that is 56 balls, right? So we have to pick up at least 56 balls out of this pool in order to ensure that out of these 56 balls, we were be sure that 12 balls were of the same color. They can be either, all the 12 balls can be either yellow, or they can be red, or they can be white. And definitely the rest of the balls are not going to be of the same color. They may be different, but the total is not going to be 12. मैम एक बार रिपीट कर दें, पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जस्ट आंसर रिपीट कर दें, ये वाली जो चीज, स्टेप्स लिखे हैं आपने। अच्छा नहीं मैम, स्टेप्स वगैरह ये सारे, अच्छा अच्छा ठीक है। पिछला देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ देखिए, नंबर ऑफ बॉल्स आपने जो फाइंड करनी है ना, आप यूं समझें कि देखिए ये जो 5 कंटेनर्स हैं आपके, ठीक है ना, ये यस 5 मैम, कंटेनर आपके कलर्स हैं। ये हो गया ब्लू, ये रेड, ये ग्रीन, ये येलो, ये वाइट। ठीक, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पे कितने पिजन्स आए, कितनी यहाँ पे आप बॉल्स अपने पिक इन करें कि आपके पास इनमें से किसी एक कंटेनर में कितनी बॉल्स आए, 12 बॉल्स आए। वो 12 बॉल्स जिस एक कंटेनर में जा रही होंगी वो डेफिनेटली उस कलर को बिलोंग कर रही होंगी ना। द ऑल 12 बॉल्स विल बी यस ऑफ मैम, ग्रीन कलर, और द 12 बॉल्स आर ऑफ येलो कलर, और वाइट, और एनी अदर, राइट। अच्छा, अब देखिए इसको मैप करना है हमने जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल के साथ। पूरे पिजन होल प्रिंसिपल की टेक्निक ही सिर्फ ये है कि आप अपने क्वेश्चन को उसके साथ मैप कर सकते। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन मार्क है कि मैं कितने पिजन्स यहाँ पर लेकर आऊं, वो मुझे फाइंड करनी थी क्वांटिटी, दैट इज की n+1। आउट ऑफ दिस टोटल जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल में सिर्फ 3 क्वांटिटीज हैं। एक है kn+1, एक है n, तीसरा है k+1। ठीक, तो मेरा k+1 क्या हो गया, ये 12, जिसने एक कंटेनर में फिट इन होना है। टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है मेरे पास, वो कलर्स हैं, वो क्या है, 5। मैंने ये 2 क्वांटिटीज मेरे पास आ गई, यहाँ से मैंने k फाइंड किया जो 11 आया, और वंस आई गेट k एंड वंस आई हैव n, आई कैन इजीली फाइंड kn+1। क्लियर? यस मैम, यस मैम। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन अ सेट ऑफ 4 integers, there must be 2 that have the same remainder, when divided by 3। ठीक, अच्छा जी, we have to basically verify स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। क्या स्टेटमेंट है कि वी हैव अ सेट ऑफ 4 इंटीजर्स। एक सेट है हमारे पास, उसमें a b c d 4 इंटीजर्स। ठीक, स्टेटमेंट इज दैट आउट ऑफ दीज 4 इंटीजर्स, अगर हम इन चारों इंटीजर्स को 1 बाय 1 किससे डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें। 3 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना, वो कोई भी रिमाइंडर हो सकता है, वो क्या हो सकता है अभी हम देखते हैं। तो इनमें, इन चारों में से 2 कोई भी इंटीजर्स ऐसे लाजमी होंगे जिनका रिमाइंडर सेम होगा। ठीक है ना, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, 5, 8, 9, 22, 35, कुछ भी हो सकते हैं ये चारों। ठीक है,
यानी इन चारों को जब हम 1 by 1 3 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा, इन चारों में से कोई से दो लाजमी ऐसे होंगे, वो कोई भी हो सकते हैं, ए और डी भी हो सकते हैं, बी और सी भी हो सकते हैं, सी और डी भी हो सकते हैं, जिनका रिमाइंडर सेम होगा। ठीक। अच्छा, पहले द फर्स्ट थिंग एट हैंड इज दैट व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स इफ वी डिवाइड एन इंटीजर बाय 3। कोई भी इंटीजर हो, उसको जब हम 3 से डिवाइड करें तो क्या क्या रिमाइंडर आ सकते हैं हमारे पास? पहली बात ये, अगर वो इंटीजर 3 से डिविजिबल था तो रिमाइंडर क्या होगा? मैम 0। वेरी गुड। अच्छा, और अगर वो 3 से डिविजिबल नहीं था तो फिर रिमाइंडर्स की क्या पॉसिबिलिटीज हैं? मैम 1 और 2। वेरी गुड। या 1 होगा या 2। कैन वी गेट अ रिमाइंडर 3? नो मैम, जब No. 3 नॉट एट बनेगा ऑल। फिर डिवाइड हो जाएगा। वो फिर डिवाइड हो जाएगा, एंड डेफिनेटली नॉट 4, नॉट 5, नॉन एनी अदर एल्स, राइट? सो 3 possibilities are here. That is, after dividing any integer by 3, we can get 3 possible remainders that are 0, 1 or 2. यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. अच्छा, अब असल चीज क्या है कि इसको मैप करना है जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल से। ठीक। any guess what we are available with here and what we have to verify or what we have to basically find? कंटेनर्स यहाँ पे क्या है? मैम रिमाइंडर्स। वेरी गुड, रिमाइंडर्स। कितने हैं वो? मैम 3। 3। या 0 रिमाइंडर आए, या 1 रिमाइंडर आए, या क्या है? 2 रिमाइंडर। वेरी गुड। तो हमारा n क्या हो गया? 3। अब बताएं दूसरी चीज हमें क्या गिवन है? मैम इंटीजर्स यानी कि सोचें। 4 हो। a+1। थोड़ा सा मैप करें कि किस चीज ने किस में जाना है। हम्म? अच्छा, ये बताएं इस वक्त ये जो इंटीजर्स हैं, 4 इंटीजर्स हैं, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? k+1 मैम। ना ना, k+1 नहीं है ये। देखें, given a set of 4 integers, there must be 2 that have the same remainder. ठीक है? इन सब इंटीजर्स ने 3 से डिवाइड होने के बाद जो जो इनके रिमाइंडर्स थे, उन्होंने इसमें से किसी ना किसी कंटेनर में जाना है ना? ऐसा नहीं है क्या? ए Yes, को मैम। हमने 3 से डिवाइड किया, बी को हमने 3 से डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, इसका आंसर इनमें से किसी एक कंटेनर में जा रहा है। और हमारा क्लेम ये है कि कोई दो ऐसे होंगे जो एक ही कंटेनर में जा रहे हैं। हमने इस चीज को वेरीफाई करना है। ठीक है? तो फिर ये चारों क्या हुए? ये पिजन्स हुए ना? Yes, मैम। right? So basically kn+1 is 4 that are integers, number of integers at hand. ठीक? What we have to actually find is k+1. n भी हमारे पास है, kn+1 भी हमारे पास है, k+1 हमने फाइंड करना। ठीक? अच्छा जी, kn+1 is 4 with n equals to 3. This is going to be 4 minus 1, and 3 times k is equals to 4 minus 1 is 3. K is equals to 1. And from here, that is k equals to 1. What is k plus 1? That is going to be 2. And definitely this is for sure that two of these integers are going to have the same remainder once divided by 3. Clear है सबको?
नहीं समझ आया तो पूछें। मैंने k प्लस 1 कैसे निकाला एंड पे? k की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। 1 आ गई ना, तो 1 + 1 2। यस मैम। ओके। ठीक, आप बल्कि ये चीज बड़ी इजीली वेरीफाई कर सकते हैं एरो डायग्राम से भी। देखें ये 4 थे ना आपके पास, अगर इसका रिमाइंडर 0 आया यहाँ चला गया, इसका रिमाइंडर 1 आया से ये यहाँ चला गया, c/3 किया फॉर एग्जाम्पल रिमाइंडर 2 आया, तो तीनों का भी अलग अलग आ गया। व्हाट अबाउट d/3, ये जो आखिरी बचा है, उसका उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? या 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, ऐसा ही है ना? तो डेफिनेटली वो इनमें से किसी एक में ही जाएगा। तो दिस इज फॉर श्योर कि आउट ऑफ दीज 3 कंटेनर्स वन इज गोइंग टू हैव 2 inputs, that is 2 integers are going to have the same remainder. Should I move forward? यस मैम। क्लास बेटा अगर एंड हो तो प्लीज रीज्वाइन कर लीजिएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a certain class has 40 students. All the students in class are known to be from 17 to 34 years age. At least how many students are of the same age, right? So total students in a class, they are basically 40, और जो 40 स्टूडेंट्स क्लास में है उनका जो एज ग्रुप है या एक रेंज है एज की, दैट इज फ्रॉम मिनिमम 17 इयर्स और मैक्सिमम 34 इयर्स। ठीक, इसी पूरी रेंज में लाइक करें, नो स्टूडेंट इज लेस देन 17 इयर्स और ग्रेटर देन 34 इयर्स। ठीक, what we have to find is that out of these 40 students, how many students are of the same age. ठीक, now who is going to tell me about the pigeons and the containers and what we have to find? मैम पिजन्स 40 हो गए। Very good. This is going to be 40. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए ना हमारे, जिन्होंने जाकर फिट इन होना है किसी चीज में। अच्छा जी, अब बताएं कंटेनर्स क्या हैं? मैम 18। क्या चीज? 18 18 कैसे आया है? 17 से 34 इयर्स मैम तक 17 से अगर अलग 34 अलग 18 ही तो मैम। वेरी गुड वेरी गुड। 17 से लेकर 34 तक जितनी पॉसिबल एजेस हैं, ठीक है ना, 17 होगा, फिर उससे 18 एज का ग्रुप होगा, 19 20 एंड सो ऑन अप टू 34। सो जो पॉसिबल एजेस जिसको हम कह सकते हैं, या हमारा एज ग्रुप जो है, या नंबर ऑफ एजेस भी हम इसको कह सकते हैं, दैट आर बेसिकली अवर कंटेनर्स एंड दे आर 18, दैट इज फ्रॉम 17 टू 34। यहाँ तक क्लियर है सबको? Is it clear? यस मैम। अच्छा, now what we have to find? मैम के ये देखिए, ये हमारे कंटेनर हो गए ना, और टोटल कितने हैं ये? 18 18 है, यानी 17 इयर्स का, 18 इयर्स का, चलते चलते आखिरी 34 इयर्स का।
ठीक है। पिजन्स जो हमारे पास है वो स्टूडेंट्स हैं जो कि 40 हैं, ये सारे के सारे ढेर सारे स्टूडेंट। इनमें से कोई इस ग्रुप में जाएगा, कोई इस एज ग्रुप में जाएगा, कोई यहाँ जाएगा। अब यहाँ पर डेफिनेटली मल्टीपल भी आएंगे। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड इज दैट कि ये जो नंबर इसमें प्लग इन हो रहा है किसी भी एक एज के अंदर, वो एटलीस्ट कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, विद दिस रेंज ऑफ एज एंड विद दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक। नाउ विद दिस गिवन डेटा व्हाट वी हैव टू एक्चुअली फाइंड इज k plus 1. ठीक। Now, kn plus 1 is 40, right? kn किसके इक्वल होगा? 39 के 39 के। n किसके इक्वल है? मैम 18 18 के। So 18 times k is 39. What will be k? That is going to be 39 divided by 18. 18 ऐसा ही है ना? And this will turn Yes, out to ma'am. be, I 13 guess, over 6 2 ma'am. point something आएगा कुछ। 2 18 2 जा 36 ना? Yes ma'am. 2 पॉइंट आई गेस 1, ये चेक मैम कर लीजिएगा कैलकुलेटर। 2.16 हाँ 2.16। 2.16 ठीक। अच्छा, अब आपको याद होगा जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल में वी रेड दैट k इज नेवर एवर गोइंग टू बी अ फ्रैक्शनल वैल्यू, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन इंटीजर। ठीक है ना, k आपका इंटीजर ही था ना, दैट इज k टाइम्स n प्लस 1 जो था। ठीक। सो वी Yes ma'am. बेसिकली राउंड इट ऑफ to, or by in other words we can take the ceil function of it, and that is going to be 3. मैम अगर 2.6 होता तो उसमें भी 3 फिर भी लेंगे। हम 3 करते। इसमें तो मैम देखें, आपको मैंने जो रिकॉर्डेड लेक्चर में भी बताया था कि सील ऑफ अ फंक्शन दैट इज से x पॉइंट y z w कुछ भी है ना, हमेशा इसका आंसर x प्लस 1 होगा। इसमें आप फ्रैक्शनल पार्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं, जो ये नंबर होता है उसमें प्लस 1 कर। ओके मैम। ठीक है, सील हमेशा एक नंबर उससे ज्यादा होता है, फ्लोर जस्ट ऑपोजिट है इसकी। ठीक। तो वंस इट इज एक्सीडिंग 2 इट मींस इट इज 3। अब चाहे वो 2.1 है, वो 2.008 है, वो 2.96 है, whatever it is, we are just going to take it as the seed of that number is basically 3. जी सॉरी बेटा, वो एक उसमें करेक्शन कर लीजिएगा कि हमारे पास आया था 2.166, we are just rounding it off to 2 and k plus 1 is going to be 3. मैम फिर जैसे नॉर्मली राउंड ऑफ करते उसी तरह यहाँ पे ही करेंगे ना। जी जी, आप यूं समझ लें कि आप उसका फ्रैक्शनल पार्ट डिस्कार्ड कर देंगे। अगर इस तरह होता ना, जैसे से हमारे पास आ रहा होता 9 पॉइंट समथिंग, तो हम उसको फिर वही बात है कि 9 से लेकर उसके बाद नियरली उसको फिर k प्लस 1 करके 10 कर देंगे। यस Okay, one more question here is how many integers are how many integers should be chosen from the set 1, 2, 3 up to 2n, where n is a positive integer such that at least
one of them be odd. Okay, ji, first just think over it. First consider the set that is at hand and what is the form of that set, and out of that set how many integers should we pick up, that is we are sure that out of the picked integers one of them, at least one of them, is for sure to be an odd number. We can have more than one odd number, but at least one should be odd. We are pretty sure about it. Anyone can tell me the patron of the set? For any value of n. मैं अगर टू एन में तो और के लिए ये वाली डेफिनेशन यूज करते हैं जिसमें 1 2 5 7 इस तरह। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल n हमारे पास चले 5 था। सेट की एंट्रीज बताएं जरा। 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाएगा? 10 तक में 10 तक, क्योंकि लास्ट इंटीजर आपको जो भी मिलेगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, कुछ भी हो n, डेफिनेटली पॉजिटिव इंटीजर है तो वो 2 टाइम्स होगा। ठीक है, यानी अगर 5 था तो 10, 7 था तो 14, वट एवर। सो 8 9 एंड 10, ये मेरा पूरा सेट हो गया विद n इक्वल्स टू 5। ठीक, अच्छा, इस सेट को हम क्या कह सकते हैं कि इसमें कितने इवन और कितने ऑड हैं? अगर आप मुझे अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे इन टर्म्स ऑफ n बताएं तो क्या कहेंगे कि हाउ मेनी इवन एंड हाउ मेनी ऑड? n times even n times टोटल 10 था ना? जो वैल्यू है n की। yes हाँ हाँ, वेरी गुड। यानी n ऑड नंबर्स हैं और n ही इवन नंबर्स हैं, ऐसा ही है ना? मैम जीरो तो है नहीं। हाँ जी, जीरो तो है ही ना, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ना। 1 3 5 7 9, टोटल कितने हुए? 5 2 4 6 8 10, टोटल कितने हुए? 5। यस मैम। देखें, एक चीज श्योर है, n की वैल्यू चाहे आप इवन पुट इन करें, n इटसेल्फ ऑड हो, आपका आखिरी इंटीजर हमेशा 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है ना, जो आखिरी रेंज आ रही है, आखिरी नंबर जहां तक सेट ने जाना है, दैट इज 2 टाइम्स n, दैट इज फॉर श्योर टू बी एन इवन नंबर। ठीक, तो डेफिनेटली जो भी वैल्यू होगी n की आउट ऑफ द सेट, दिस इज फॉर श्योर दैट n नंबर्स आर गोइंग टू बी ऑड एंड n नंबर्स आर गोइंग टू बी इवन, यानी हाफ हाफ हो गया, आप यूं समझ। ठीक, अब बताएं कि आउट ऑफ दिस सेट with n odd and n even, how many numbers should we pick with the surety that out of these picked numbers, one of the integer is definitely an odd number? बहुत आसान आंसर है इसका। मैम n पॉसिबिलिटीज होंगी, n नंबर्स में इसमें से पिक करूं, टोटल नंबर 2n है, तो अगर मैं n n पॉसिबिलिटीज होंगी जिसमें ना 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 पॉसिबिलिटीज नहीं, हमने उनसे पूछा क्या है कि हाउ मेनी इंटीजर्स शुड वी चूज। टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं 2n,
2n ही है ना, देखिए n टाइम्स 2 हो गया, 10 इंटीजर्स हैं आपके पास। टोटल इंटीजर्स हैं 2n, जिसमें से n इवन है, n ऑड है। मैं रैंडमली, मैंने ब्लाइंड फोल्डेडली आंखें बंद करके मैंने इसमें से इंटीजर्स पिक करने हैं। मैं कितने पिक करूं कि मैं श्योर होंगी कि मैंने जितने पिक किए थे उनमें से एक लाजमी ऑड था। Six. 6, very good. How you can map it in terms of n? Plus one. Plus 1, very good. We should pick n plus 1 integers in order to be sure that one of them is an odd number. Logic क्या है इसके बैकग्राउंड में? कैसे सोचा आपने कि n plus 1? 5 नंबर इसमें इवन थे, अगर आप इवन ही पिक करते हैं तो हो सकता है जब 5 नंबर पिक किए हैं वो इवन ही हो, लेकिन अगर सारे छठा even नंबर ही। पिक करते हैं तो वो छठा नंबर डेफिनेटली पिक करते हैं ऑड तो होगा। वो odd। वेरी गुड, वेरी गुड। सो द थिंग इज दैट इफ यू आर blindfoldedly picking the numbers, then out of worst case scenario क्या होगा कि आपने जितने पिक किए वो सब के सब इवन निकल आए। ठीक है, तो इवन कितने हो सकते हैं आपके पास? इसमें 5 हो सकते हैं। तो एक और लाजमी पिक करना पड़ेगा ताकि जो अगला पिक कर रहे हो, हम वर्स्ट केस सिनेरियो को भी अगर देख लें तो वो हमें श्योर होंगे कि वो क्या होगा, ऑड होगा। सो वी हैव टू पिक एट लीस्ट n plus 1 integers so that one of them is definitely a odd number। ठीक, अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर ये लिखा होता कि it is one of them is at least even, तो क्या आंसर होता? मैम उसमें भी यही चीज थी। सेम यही चीज थी। उसमें हम अपना वर्स्ट केस सिनेरियो किसको रख लेते? ऑड को। अगेन वी हैव टू पिक अप n plus 1 integers। ओके जी, वन लास्ट क्वेश्चन। If 7 colors are used to paint 50 bicycles, show that at least 8 of them will be of the same color, right? We have to verify this statement. Okay ji, first of all map it according to the pigeonhole principle। and 7 होगा। Okay ji, what are the containers here? मैम 50 Colors? bicycles। मैम 7। हाँ, कंटेनर्स बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बाइसाइकिल्स को कह रहे हैं, उसके ना ऊपर ना, हमने कलर बाइसाइकिल्स लगाना कहाँ से होगी बेटा? and colors। देखिए ना, यहाँ से आपको पता चल जाएगा सेम कलर आया है। कंस्ट्रेंट किसके ऊपर है? कलर के ऊपर है। कलर्स पे। ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास कलर्स की? 7। ठीक है ना। अब और हमारे पास कितनी चीजें जिनके ऊपर हमने ये कलर पेंट करने थे? दैट आर 15 नंबर, 50 बाइसाइकिल्स थी। ठीक है, अब उस पहले वाले को हमने पहला कलर किया, दूसरी को हमने दूसरा कलर किया, तीसरा किया, 7th वाले को किया। डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे कंटेनर्स होंगे जहाँ पे एक से ज्यादा के कलर की बाइसाइकिल्स जाएंगी। ऐसा ही होगा ना? 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। यस मैम। ठीक है, बट वी हैव टू शो दैट with 7 colors in hand and 50 bicycles to paint, there must be at least 8 of them। 8 of them किसके लिए? 8 bicycles ऐसी होंगी जिनका कलर सेम होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारे कंटेनर्स क्या हो गए, यानी जो पिजन होल्स थे वो क्या हो गए? n, that is
कलर्स, हमारे नंबर ऑफ कलर्स होते, विच इज 7. 7. ठीक. अच्छा, नाउ व्हाट आर द पिजन्स? मैम 50 पिजन्स यहाँ पे किस चीज को Cycle. रिप्रेजेंट करें? बाइसाइकिल्स को. Bicycles. यस मैम ठीक है जी, वो हमारे पास हैं. सॉरी, दैट इज kn+1. उस क्वांटिटी को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज 15 नंबर. ठीक. एंड अगेन व्हाट वी हैव टू फाइंड इज k+1. कि एक कंटेनर में कितनी आई बाइसाइकिल्स, एंड दैट quantity should turn out to be 8, because we are in fact given with the number and we have to show that. So with kn+1 equal 50 and with n being 7, so kn is going to be 50 minus 1, that is 49. Value of n is 7, so 7 times k is 7 आ जाएगा 49 and k is 7. What about k plus 1? This is going to be 7 plus 1, that is 8 8. So prove that the given statement is correct.